Good morning, students. Today we are going to start our second poetry. The poem name is An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Splendor. First of all, we will read about the poet. Stephen Splendor was born on 1905 and we lost a great poet at the year 1995. He was an English poet and an essayist. He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930. Splendor took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Splendor included poems of dedication, The Edge of Beginning, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within World. In elementary school classroom in a slum, he has concentrated on the theme of social injustice and class inequality. Today we are going to read in this poetry An Elementary School Classroom in a Slum. This poem is written because it wants to deliver the society about the inequalities which are still being held in our society and class inequalities which are still here. So he is very much upset about this. So he wanted to write the poetry and he named it An Elementary School Classroom in a Slum. First of all, we have to know about an elementary. Elementary means what? Elementary is a basic education where a child gets about schoolings. For example, we can say our primary section or pre-primary sections where students are there to get their first basic education. And this elementary school is about which area? About a slum area. Slum area itself makes us recognize about the children how they will look like, because they are so much deprived by all the equalities and rights from the societies because they are below poverty lines. So now we are going to read in this poetry how the poet describes the children which are not developed, they are weak, they are dull. Why they are dull? Because they are not noticed by any of us from the society. They are neglected part of our society. He wants to make focus upon this neglected part of our society to come on light and make them also have the same opportunity as we all get. He also blames all the political leaders who only go in the slum areas for their vote banks and they never bother about them after that. So now we will start the introduction first about this poetry. Introduction. The social inequalities which are prevailing in the society. In the poem, the poet describes the condition of the students of an elementary school which is situated in a slum area. The poet wants to draw attention of each of one towards these kids so that their life can be improved and they may get trained to become good citizens rather than criminals. The poem has been written in free verse. It does not have rhyme scenes. Now we will continue with reading the poem. I will first read the first stanza and I will describe in this video about the first stanza explanation. First I will read the whole stanza, then line by line I will describe you the meaning. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, their hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eye, the stunned, unlucky hire of twisted bones, reciting a father's granulate disease, his lessons from his desk at back of the dim class. One unnoted, sweet and young, his eyes lives in a dream of squirrel's game in the entry room other than this. So the poet starts the poem very beautifully from an alliteration, far, far from gusty waves. What the poet says,
by saying the line, far, far from the gusty waves here. Far, far from the gusty waves is what the poet wants to say. He wants to describe that these children are far away from all the other kids of their age. They are different. Why they are different? What the poet says, the poet describes the children who study in an elementary school which is set up in a slum area. The faces of children are dull and without energy. They are not full of energy like other kids of their age. The poet wants to say that these children doesn't resemble same as energetic as this age group children should be. They are not energyful because they are malnutrited. They have not get full nourishment of the age growth they want to be there. The poet just wants to compare these children to normal children of their age. So he writes different things about them. First of all, he describes like the children like rootless weeds. Rootless weeds means the weeds which are grown in our crops, which are waste. They are not useful for us. So these children are also a useless part of the society. We are neglected these children because they are living in a slum area. So the poet compares the children with rootless weeds here. तो पोइट क्या कहना चाहता है इस पोइट्री में? पोइट ये डिस्क्राइब करना चाहता है कि ये जो बच्चे हैं जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, उन्हें हम लोगों ने वंचित वर्ग में रख रखा है और हम उन लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और ये बच्चे हमारे सामान्य बच्चों जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, ये कुपोषित हैं। ये कैसे हैं? जैसे कि हमारी फसल में हम खरपतवार होती है जो हम उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं, ऐसे ही हमने इन बच्चों को अपने समाज से उठाकर अलग रख दिया है, कहीं दूर उनको बिठा दिया है, इसलिए हमारा ध्यान उनके ऊपर नहीं जाता। तो पोइट ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे उनको अपना ध्यान उन पे आकर्षित करने के लिए उनको डिस्क्राइब किया है। द चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वेड्स देयर हेयर टर्न राउंड देयर पार्लर, मतलब उनके जो बाल हैं वो बाल भी कैसे हैं? अनकोम्ड, अनटाइडीड, ऐसे ही गिरे हुए हैं उनके चेहरों पर, और उनका चेहरा भी कैसा दिख रहा है? बिल्कुल डल, विदाउट एनर्जी, क्योंकि उनको पूरा पोषण नहीं मिला है उन बच्चों को। कुपोषित बच्चे हैं वो, बिल्कुल ही कुपोषित हैं, तो उनके चेहरे पे वो रौनक, वो चमक नहीं है। बिल्कुल अनटाइडी, अनड्रेस्ड, अनकोम्ड वो बच्चे वहाँ पर दिख रहे हैं। द चिल्ड्रंस आर कंपेयर्ड टू अनवांटेड वीड्स। The writer wants to say that the children seems to be unwanted like the unwanted weeds which grow on their own in the fields. Their hair is not neatly done, मतलब सही तरीके से उनके बाल भी कोम्ड नहीं हैं। It falls on the pale face, चेहरे पे बिल्कुल डल जो चेहरा है उसके ऊपर उनके बाल गिर रहे हैं। As if they haven't combed, ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने बाल को सुलझाया नहीं, कंघी ही नहीं उन्होंने की है, क्योंकि उनके पास इतना कुछ है ही नहीं कि वो इतना अपने आप ऊपर ध्यान दे सके। क्योंकि सबसे पहले हमारी जो बेसिक नीड है वो क्या है? हमारी भूख है। अगर हम कुपोषित रहेंगे तो हमारा ध्यान किसी और चीज़ पे जाएगा ही नहीं। जब तक हम फुल एनर्जेटिक, फुल न्यूट्रिशन फूड हम नहीं लेंगे, हम इतने ब्रिस्क और अलर्ट नहीं होते हैं। वो बच्चे बिल्कुल ऐसे डल क्यों थे? क्योंकि वो मैल न्यूट्रिशन थे, उनके पास इतनी ताकत या क्षमता नहीं थी कि वो अपने ऊपर इतना ध्यान दे सके। The hair was not neatly done. Then he describes what he बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बच्चों को ऐसा डिस्क्राइब कर रहा है कि जैसे अपन हमारे सामने एक इमेजिनेशन आ जाता है कि स्लम एरिया के जो झुग्गी झोपड़ियों वाले जो बच्चे होते हैं वो कैसे बेचारे रोज़ के लिए ही वो इतना संघर्ष करते हैं कि रोज़ एक दिन का ही उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो उनके माँ बाप बिल्कुल भी उन बच्चों पे ध्यान नहीं देते और वो बच्चे बिल्कुल कुपोषित होते हैं क्योंकि उन्हें पूर्ण पोषण नहीं मिलता। तो पोइट ने डिस्क्राइब किया उन्हें रूटलेस वेड्स की तरह। द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड, मतलब एक लंबी सी लड़की भी उन पोएट को उस रूम में दिख रही है। वो कैसी दिख रही है? लंबी है लड़की, मगर उसका जो सिर है पूरा झुका हुआ है, वजन के मारे झुका हुआ है या शर्म के मारे झुका हुआ है, ये हम नहीं कह सकते। मगर वो जो लंबी सी लड़की थी उसने अपना सिर नीचे
झुका रखा था। अ पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आई। अब यहाँ पे भी मेटाफोर यूज़ किया है पोएट ने इतना सही तरीके से। बॉय को कैसे डिस्क्राइब किया, वो बिल्कुल दुबला पतला सा कुपोषित बच्चा है, तो उसका तुलना बिल्कुल पेपर जैसा, पेपर थिन, बिल्कुल कागज़ जैसा दुबला वो बच्चा है। विथ रैट्स आई, रैट्स आई बिल्कुल चूहे जैसी आंखें। चूहे जैसी आंखें किसकी होती हैं? चूहे क्या खोजते रहते हैं, हमेशा भोजन की तलाश रहती है। तो वो बच्चा भी इतना कुपोषित था कि उसकी आंखें किसकी तलाश कर रही थी? शायद भोजन की तलाश उस बच्चे को थी। उस क्लासरूम से उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। The stunned, unlucky heir of twisted bones reciting a father's granuled disease। अब एक और बच्चा था वहाँ पर जो बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि एक बीमारी से ग्रसित था। वो इनहेरिटेड मतलब अनुवांशिक बीमारी उसको अपने पिता से, अपने पूर्वजों से मिली हुई थी। उस कारण से उसके बोन्स जो थे ट्विस्टेड थे, वो बेंड हुआ था और वो ऐसा बच्चा वहाँ पर दिख रहा था। इनहेरिटेड क्यों है ये बीमारी उसके लिए? क्योंकि वो कुपोषित है, तो ये अनुवांशिकली इनके अंदर आगे बढ़ती गई। तो ये बच्चे के पास जो बीमारी थी वो अपने पूर्वजों से, अपने पिता से एक आई हुई बीमारी उस बच्चे में थी। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। अब वो क्लासरूम कैसा था? बिल्कुल डिम था, डल था। क्यों डल और डिम था? क्योंकि वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं था समाज का। एक नाम के लिए स्कूल था वहाँ पर, स्लम एरियाज़ के लिए एक वोट बैंकिंग एक प्रायोरिटी थी, इसलिए वहाँ पे एक स्कूल था। वो डिम था बिल्कुल, कुछ भी उसमें इतना एनर्जेटिक या फुल फ्लरिश्ड कुछ इक्विपमेंट उस स्कूल में नहीं थे। एंड अननोटेड स्वीट एंड यंग। उस डिम क्लास में भी एक बच्चा था जो बहुत ही स्वीट दिख रहा था, वो यंग दिख रहा था, मगर उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई वो सपना देख रहा हो, जैसे कि उसके अंदर एक बहुत सारी कुछ सपना हो उसके मन में, वो कुछ सोच रहा। वो भली उस क्लासरूम में बैठा हुआ था मगर उसकी आंखें कोई बहुत ही सुंदर सपना देख रही थी। और उसका ध्यान कहाँ था? ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम रैदर दैन दिस। उसका पूरा ध्यान उस पेड़ पर कक्षा से बाहर खिड़की से झांकते हुए वो देख रहा था कि एक गिलहरी जो है पेड़ पर अपने घर में खेल रही थी और बिल्कुल आज़ाद वो वहाँ पर घूम रही थी। इन बच्चों को कुछ ज़्यादा आज़ादी उनके एरियाज़ में नहीं है, उनको रिस्ट्रिक्टेड है, वो अपने समाज के अंदर नहीं आते, उनका एक अलग एरिया, अलग जोन बांटा हुआ है और वो वहीं रहते हैं। तो इन बच्चों की भी आशा यहाँ पर पोएट दिखाना चाहता है कि हम जो इनइक्वालिटी इनके साथ करते हैं, इन्हें इस बांध के सीमित दायरे में रखते हैं, वो गलत है। इनकी भी इच्छाएँ हैं कि ये भी पंख फैलाएं और खुले आसमान के नीचे रहें और अपनी इच्छाओं को, अपनी जो कल्पनाएं हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, वो जो चाहते हैं उनको वो भी हम जैसे सामान्य व्यक्ति जैसे वो भी उसे जीने की चाह रखते हुए वो कोशिश करना चाहते हैं। उनकी आंखें जो पोएट ने हर एक तरह से अलग अलग तरह से उसे डिस्क्राइब किया है, बहुत लिमिटेड इस वीडियो में उसको डिस्क्राइब करना बहुत पॉसिबल नहीं है। एक जैसे उनको डिस्क्राइब किया रूटलेस वीट से, रैट्स आई से, पेपर स्विमिंग बॉय, है ना, वेड डाउन हेड गर्ल, और एक बॉय विद स्वीट ड्रीम्स हैविंग लॉट्स ऑफ एनर्जेटिक ड्रीम इन हिज आईज बट ही इज़ नॉट गिवन so much space from the society to overcome his dreams. Fulfillment of his dreams is not been done because he lives in a स्लम एरिया। तो हम इसके और आगे वीडियो में भी पढ़ेंगे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे इसको, और होप आप इस स्टैंजा को ढंग से पढ़ेंगे। और जो भी डाउट्स हैं आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके पूछेंगे। होप यू विल रीड द पैराग्राफ एंड विल कंटिन्यू विद द सेकेंड पैराग्राफ टुमारो। थैंक यू।